Hello students, in the first lecture we have discussed introduction to vectors, then certain facts about vectors, and finally distance and displacement. Today we will, in the lecture 2, we will extend the lectures to, first is addition of vectors. Addition of vectors. As all we know, there are two ways of representing vector. So in the same way, vector can be added in two ways. One is graphical method and second is analytical method. As we have discussed in lecture 1 that vector can be represented in two ways. One was our graphical way and second was analytical way. In the same way, the vector can be added by two ways. One is graphical, second is analytical. So first will be graphical. In graphical method of vector addition. Graphical method of vector addition. Now first case is, suppose two vectors are acting along same line. Means this is suppose my vector A and this is my vector B, right? Both are acting along same line and we want to add them. First is graphically, we want to add them graphically. So what we will do, what the language says for the language is, in order to add two vectors when they are acting along same line, draw any one of them. Draw any one of them. Put the tail of second on the head of first one and move in the direction of second. In the direction of second vector. A line joining tail of first vector to head of last vector gives resultant vector, right? What I have written? When two vectors are acting along same line, suppose A and B are my two vectors, what is the process? Draw any one of them, put the tail of second on the head of first one and move in the direction of second. A line joining tail of first to head of last gives the resultant vector. So according to the language, suppose I have drawn a line which is along A vector. This is my A vector. Put the tail of second on the head of first one and move in the direction of second. तो दोनों जुड़ गए हैं आपके. Now what he is saying? A line joining tail of first to head of last. This is tail of first. मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं, अदरवाइज लाइन ओवरलैप करेगी. A line joining tail of first to head of last. This line gives the resultant vector R vector. So this is my A vector, this is my B vector, and this जो line draw की है मैंने कलर जान के different किया so that you can easily understand. So this is my R vector. What I have done over here, I have added, means R vector is equal to A vector plus B vector. So graphically, if we want to add two vectors, so what is the process? When they are acting along same line, draw any one of them, put the tail of second on the head of first one,
and move in the direction of second vector. A line joining tail of first vector to the head of last vector gives the resultant vector, right? Now second case, B part. When two vectors are acting along opposite lines, अगर दो वेक्टर जो दिए हैं बच्चों आपको, अगर वो अपोजिट लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं, अपोजिट लाइंस, एंड हियर द वर्ड वाज अलोंग सेम लाइन. अगेन सपोज दिस इज माय ए वेक्टर, this is my B vector, now line is opposite, and this we have already discussed in the certain facts about vectors कि when direction opposite हो जाएंगे तो opposite direction में हो जाएंगे. Again same process, draw any one of them, put the tail of second on the head of first one, move in the direction of second, line joining tail of first head of last is the resultant vector. Same method. So this is my again A vector. Up now this is the tail of B vector. If I put it over here, I have to move in the backward direction. तो backward के लिए overlapping हो जाएगी, तो I will plot it dotted outside. This is my B vector. So this is A vector. This is B vector. Now what he says, line joining tail of first to head of last. Now this is the line, tail of first to head of last. This is your R vector. So what is R vector? हाँ जी, साइन क्या आएगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा साइन माइनस आना चाहिए, राइट? लेकिन साइन प्लस आएगा. अभी बता रहा हूं क्यों आएगा. आपको कुछ बुक्स में माइनस लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको माइनस आज समझ लोगे तो आप अपने सारे कंसेप्ट को मिसकंसेप्ट में कन्वर्ट कर लोगे. माई हेडिंग इज एडिशन ऑफ वेक्टर. मेरा हेडिंग क्या चल रहा है? एडिशन ऑफ वेक्टर. मैंने स्टार्ट किया एडिशन ऑफ वेक्टर, और मैंने क्या कहा, ऐड करने का तरीका यह है कि आप पहले वाले को ड्रॉ करो, उसके हेड पे सेकंड की टेल को पुट कर दो, सेकंड की डायरेक्शन में मूव करो, जो कुछ बच गया अब आपके पास टेल ऑफ फर्स्ट हेड ऑफ लास्ट पे मूव करो, जो लाइन ज्वाइन आएगी दैट गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर. तो मैंने ऐड किया, माइनस नहीं किया, इनको ऐड किया है. तो डोंट गेट मिसकंसेप्ट ओवर हेयर. कुछ बुक्स में ये माइनस लिखा हुआ है, तो बेटा जी बी केयरफुल ओवर हेयर. अगर ये आपने एक दफा आज माइनस इसको याद कर लिया, पूरे वेक्टर की थ्योरी चेंज हो जाएगी सारी. सो बी केयरफुल ओवर हेयर. थर्ड केस, सी पार्ट. When two vectors act along different directions, तो ये मेरे पास एक A वेक्टर है और ये मेरे पास एक B वेक्टर है. This is my A वेक्टर and this is my B वेक्टर. अगेन प्रोसेस वही है मेरे पास. फर्स्ट ड्रॉ एनी वन ऑफ देम. ये पहले मैंने ए ड्रॉ कर लिया, पुट द टेल ऑफ सेकंड ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वन, ये मैंने बी ड्रॉ कर लिया. लाइन ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट, वो कहां से कहां ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे? यहां से ड्रॉ करनी पड़ेगी. दिस इज माई रिजल्टेंट वेक्टर. तो व्हाट इज आर वेक्टर? इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं आपको. अगर आपके दिमाग में यहां माइनस आ रहा था, चलो वो भी, इसको भी क्लियर करता हूं वो क्यों माइनस नहीं होगा. तो फिर तो बच्चों, जैसे मैंने कहा आपको लगा भी ये सेम डायरेक्शन में है, मैंने इनको ऐड कर दिया, ये अपोजिट में है, माइनस होने चाहिए थे, तो फिर यहां तो मुझे ये लिखना चाहिए था इस केस में तो कि भाई ए वेक्टर है प्लस ये ऐसे गया और बी वेक्टर. ये तो कोई सिंबल नहीं है, ये तो कोई सिंबल नहीं है बच्चों. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हेयर, अब मेरी भाषा को ध्यान से सुनना. मैंने ये कहा है कि अगर आपने दो वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करना है, मैंने एनालिटिकल की बात नहीं की. एनालिटिकल मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो दैट इज एनालिटिकल मेथड, वो भी आगे आएंगे. यहां मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि आपने अगर वेक्टर को ऐड करना है और ग्राफिकली ऐड करना है,
आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो भी आपने जिसको भी पहला वेक्टर सपोज करना है उसको प्लॉट करो, उसके हेड के ऊपर सेकंड की टेल पुट कर दो, सेकंड की डायरेक्शन में मूव करो, वहां जाके रुक जाओ। अब टेल ऑफ फर्स्ट जहां से शुरू किया था वहां से हेड ऑफ लास्ट पे लाइन ड्रॉ करो। इसमें आपने अपने दोनों वेक्टर को ग्राफिकली ऐड कर लिया है। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा वो मुझे अभी नहीं पता, वो मैंने अपना दिमाग ज्यादा लगा लिया है। वो क्या लगा लिया है कि भाई यहां पर अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मान लो 4 था, ये 3 था, तो 7 आना चाहिए, आएगा, वो आएगा भी आएगा नेक्स्ट स्टेप में जाके, तो वो मैग्नीट्यूड 7 है। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो डिफरेंस वाइज आप, तो इसलिए यहां पर मैंने क्या कहा है कि मैंने वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड किया है, तो इट शुड बी प्लस माइनस नहीं आएगा यहां पर। कोई डाउट हो बेटा यहां तक? तो ग्राफिकली व्हाट आई हैव सेड, मेरे पास दो वेक्टर हैं, पहले एक को ड्रॉ करना है, उसके हेड पे सेकंड की टेल को पुट करना है। तो यहां देखो आगे चल पड़ा, यहां पीछे आ गया और यहां ऑब्लिक चल पड़ा। तो फिर मैंने टेल ऑफ फर्स्ट से हेड ऑफ लास्ट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो जो लाइन आएगी दैट विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों को ऐड करने के बाद जो भी मेरा रिजल्टेंट बना है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब मुझे एडिशन के बाद क्या काम करना है मेरा बेटा जी? मुझे एनालिटिकल मेथड की बात करनी है, क्योंकि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। न्यूमेरिकल सारे मेरे, ग्राफिकल मेथड भी मुझे न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा और एनालिटिकल मेथड भी मुझे हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट मुझे डिस्कस करना है एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, भाई मेरे पास क्या है, एक वेक्टर ये ए है, एक वेक्टर ये बी है। मैंने इनको ऐड करना है, पहले अभी सीखा मैंने ऐड करना। ये ए वेक्टर ड्रॉ किया और ये बी वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, ये इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर आ गया। अभी कर हटाऊं मैं, ये सपोज ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको अंदर लिख रहा हूं मैं। दिस इज माई आर वेक्टर, अभी पढ़कर आया हूं मैं। अब मैंने क्या किया, एक नॉर्मल प्लॉट किया मैंने लाइक दिस, और इस एंगल को थीटा सपोज किया। ये एंगल मेरे पास बीटा है, राइट। दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर। ध्यान से देखो, या चलो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी इसको अभी बनाएंगे, इसको भी अभी बनाएंगे, इसको भी पहले, क्योंकि मुझे पहले स्टेटमेंट करनी है। तो मेरे पास एनालिटिकली मेरे पास क्या है, अब दो वेक्टर ऐड करने, ये भी मैंने जस्ट अभी पढ़ा है, लास्ट में ये पढ़ा है मैंने। तो मेरे पास दो मेथड है। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरे पास पहला मेथड कौन सा है बच्चों? ट्रायंगल लॉ। सी केयरफुली, OPQ इज अ ट्रायंगल। अब मेरे को ध्यान से देखना, मैंने O से P पर गया, P से Q पर गया और Q से वापस आ गया O के ऊपर। इस ऑर्डर को साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। भाई मैंने पेन को हिलाया ही नहीं, ऐसे गया वापस आ गया, दैट इज साइक्लिक ऑर्डर। अगर मैं इस ट्रायंगल में ध्यान से देखूं तो मैं O से P गया और P से Q गया, ये तो साइक्लिक ऑर्डर है, लेकिन वापस नहीं आया, वो मुझे उल्टा जाना पड़ रहा है वापस, रिवर्स डायरेक्शन में। ये मुझे लैंग्वेज में यूज करना है अभी, जो मैंने बात बताई है आपको ये। तो नाउ व्हाट दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट if two vectors are represented both in magnitude and direction, by the two sides of a triangle taken in
same order, then their resultant is represented by third side of triangle taken in opposite order. लैंग्वेज बिल्कुल टेक्निकल है, इसमें आप कोई भी वर्ड मिस नहीं कर सकते. बी केयरफुल. लैंग्वेज इज टेक्निकल. आप बुक ए को पढ़ो, बुक बी को पढ़ो, बुक सी को पढ़ो, सब में टेक्निकल लैंग्वेज है ये. यू कैन नॉट, यू कैन से शॉर्टकट, यू कैन नॉट अप्लाई शॉर्टकट, और यू कैन से, यू कैन नॉट ओमिट एनी वर्ड. किसी वर्ड को आप, मैंने क्या कहा है, इट स्टेट्स दैट if two vectors are represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order. तो मैं ऐसे गया, सेम ऑर्डर है ये. यहां मैंने पेन खड़ा कर दिया अपना यहां जाके. Then their resultant is represented both by the third side of a triangle. यहां पर एक वर्ड मैं मिस कर गया हूं वर्ड. Then their resultant is represented both in magnitude and direction. बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये मेरे से रह गया बेटा, तभी मैंने दोबारा पढ़ा है. बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो मेरा साइक्लिक ऑर्डर तो वापिस आना बन रहा था ये, लेकिन मेरा रिजल्टेंट क्या है बच्चों? नाउ दिस इज माय रिजल्टेंट, अपोजिट ऑर्डर में है. तो आपको डेफिनेशन को मतलब अंडरस्टैंड करने में या क्रैम करने में, क्योंकि देखो कुछ चीजें क्रैम करनी पड़ता है. दिस इज डेफिनेशन बेसिकली. डेफिनेशन कैन नॉट बी चेंज. देयर कैन बी नो वाया मीडिया और ऑल्टरनेटिव टू दिस. तो ये मुझे ऐसे ही क्रैम करनी पड़ेगी सीक्वेंस में. मुझसे शब्द रह गए थे, मैंने ऐड किए बाद में सेकंड टाइम पढ़ते हुए. It states that if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite order. अब ये तो मैंने डेफिनेशन कर दी इसकी. अब मुझे इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि एनालिटिकल मींस मुझे फिगर्स में वैल्यू चाहिए. वही ट्रायंगल में फिर बना रहा हूं, हालांकि वहां भी काम चला सकता है, लेकिन चलो मैंने कहा साइड में बनाते हैं, क्योंकि इसको रब करना है मुझे अल्टीमेटली बाद में. दिस इज माई ओ, दिस इज माई पी, दिस इज माई क्यू, दिस इज माई आर वेक्टर, दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर. मैंने क्या किया, एक नॉर्मल प्लॉट किया क्यू एम, ये नॉर्मल प्लॉट किया. दिस एंगल इज थीटा, राइट, और ये एंगल मेरे पास बीटा है भाई. इन ट्रायंगल OQM, इन ट्रायंगल OQM, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों ये, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये. तो व्हाट इज OQ स्क्वायर? माय 9th और 10th क्लास नॉलेज. OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर. व्हाट इज OM? दैट इज OP प्लस PM होल स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर. कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? एक मैंने शब्द लिखा है यहां पर, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये मैं वेक्टर में डिस्कस कर चुका हूं. ये मेरे पास अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अब जैसे मैंने कहा OP जो है वो वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मींस जो डायरेक्शन OP की है वही डायरेक्शन A वेक्टर की है, जो लेंथ OP की है वही लेंथ मींस मैग्नीट्यूड A वेक्टर का है. तो मैंने वहां भी बताया था कि मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपल OP मींस OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A वेक्टर मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्योंकि मेरी ज्योमेट्री चल रही है तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू राइट दिस थिंग, तो मैं ये लिखूंगा. तो व्हाट इज OQ? आर वेक्टर मोड स्क्वायर इज इक्वल टू, या उससे पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स और कर लेते हैं, क्योंकि मुझे PM और MQ नहीं पता अभी, उसको भी निकाल लेते हैं. इन ट्रायंगल PQM, इस ट्रायंगल में भाई देखो व्हाट इज साइन थीटा? हाँ जी बच्चों, क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज QM बाय PQ. व्हाट इज QM?
पी क्यू साइन थीटा, व्हाट इज पी क्यू, चेक कर लो, बी वेक्टर मॉड साइन थीटा, दिस इज माई क्यू एम। और क्या चाहिए मुझे, एम क्यू क्यू एम एक ही बात, और पी एम चाहिए, कॉस थीटा, उसी ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, पी एम अपॉन पी क्यू, व्हाट इज पी एम, दैट इज पी क्यू कॉस थीटा, व्हाट इज पी क्यू, बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा। अब मुझे इस इक्वेशन में ओ क्यू ही पता है, आर होता है, ओपी पता है, ए होता है, पीएम मैंने निकाल लिया, क्यूएम मैंने निकाल लिया। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब मैं इसमें पुट करूंगा, एक सारा निकालूंगा, तो व्हाट इज ओ क्यू, आर स्केयर, आर वेक्टर मॉड स्केयर लिखना चाहूंगा बेटर है, आर वेक्टर मॉड स्केयर इज इक्वल टू ओपी ए वेक्टर मॉड प्लस पी एम, पी एम, पी एम ये लिखा हुआ है, दिस इज पी एम, बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू एम और एम क्यू एक ही बात है, दैट इज बी वेक्टर मॉड साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप, आर वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से और क्या आएगा, टू ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा आएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो ये टर्म और ये टर्म अगर हम ऐड कर लें दोनों को तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर था, वो 1 होता है बेटा हमेशा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, आर वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस ऑफ थीटा, राइट बच्चों। ये मेरे पास, सॉरी मैंने क्योंकि इसके हटेगा अंडरूट ले लिया है, ये मेरे पास उस वेक्टर आर का जो आप पीछे ग्राफिकली निकाल कर आ रहे थे उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने आज कि उसकी लेंथ कितनी होगी। वो डिपेंड किस पे करेगी, इस एंगल थीटा पे डिपेंड करेगी, एंगल गिवन होगा मेरे को न्यूमेरिकल्स के अंदर। नंबर 2, अब जो ये वेक्टर आर आएगा, ये जो आर आएगा इसकी एक डायरेक्शन होगी, वो मैं कैसे बताऊंगा, तो मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस लाइन को बेसिक माना है, फिर मैंने इसके हिसाब से कहा था ये मेरा बी इंक्लाइंड है और ये आर आ गया, तो मैं बताऊंगा कि इसके साथ ये वेक्टर एंगल कितना बना रहा है, तब मेरी डायरेक्शन आएगी। तो सेकंड स्टेप रहेगा मेरा, इसको अब मैं इस चीज को मैं रब कर सकता हूं, आई डोंट नीड नो मोर, इट इज नॉट नीडेड, वो भी मैं रख रहा हूं क्योंकि वो तो रेफरेंस पॉइंट है मेरा। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, हाँ जी, अगेन इन ट्राइंगल ओ क्यू एम, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ बीटा, क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, क्यू एम अपॉन ओ एम इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन ओ पी प्लस क्या हो जाएगा, पी एम, ये दोनों पता है मुझे। तो व्हाट इज टेंजेंट बीटा, बी वेक्टर मॉड साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, ये उसकी डायरेक्शन आ गई है भाई। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर रोमन 2 बड़े वाला 2 मीन्स क्योंकि बेसिक इक्वेशन था मेरे पास, एक ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। पहले तो इन दोनों इक्वेशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको, ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है, अब ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के मैंने बहुत सारे रूल्स पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 9-10 में या तो पढ़ कर आगे आगे नहीं तो आगे जाके पढ़ूंगा। इसकी मैं एक और शेप लिख रहा हूं, अगर नहीं समझ आएगी तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, आर अब मैं वेक्टर लिटा रहा हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू कॉस थीटा के नहीं बन जाएगा, ये चेक कर लो भाई। इसको हम ट्रायंगल के अंदर कोसाइन लॉ पढ़कर आए हुए और नहीं पढ़ेंगे कहीं ना कहीं जाके जाके मैथ के अंदर कोसाइन लॉ। तो ये कई अगर आपको कंपटीशन के अंदर, क्योंकि वो देखो मैंने कंपटीशन बिल्कुल सीधा नहीं होता, वो हमेशा टेढ़ी चीजें पूछता है, तो दिस इज माय कोसाइन लॉ, और ये कुछ नहीं है, वेक्टर एडिशन का ही मेथड है ये एक। क्लियर बच्चों? अब
जो मैंने ग्राफिकली काम किया था वहां मैंने कहा था यहां माइनस में आएगा, अब वो सारा मुझे वेरीफाई करना है, चेक करना है, इसी दो रिजल्ट से चेक करना है। ये तो मैंने जस्ट आपके लिए, क्योंकि कई दफे क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें व्हाट इज कोसाइन लॉ, तो वो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, यू नो वेक्टर एडिशन। तो ये कौन सा एंगल था, ये कॉसेटा कौन सा है। अब एंगल बताता हूं मैं कैसे निकालते हैं, वैसे पीछे बता चुका लेकिन चलो फिर बताता हूं मैं आपको। ए के वेक्टर ए है और ए के वेक्टर बी है। अगर एंगल निकालना तो मुझको टेल टू टेल पुट करना पड़ेगा, मुझे इनको टेल टू टेल तब एंगल निकलता है, और वो स्मॉलर एंगल की बात करते हैं हमेशा। तो चेक कर लो, ये मैंने यहां पर ए वेक्टर रखा हुआ है, इसको आगे एक्सटेंड किया डॉटेड, और ये ऊपर बी, तो फिर अगर ये आगे जाएगा तो यहां टेल पहुंच जाएगी, तो ये टेल टू टेल एंगल आ गया। तो ये एंगल कौन सा है, टेल टू टेल, ए और बी के बीच का एंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा। अगर मुझे बीटा है, यहां पे एंगल बीटा है, वो एंगल बीटा ए और आर के बीच में है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये कॉस ऑफ, उसके अकॉर्डिंग कॉस ऑफ बीटा। ठीक है बच्चा, ए और आर के बीच में एंगल आई है, तो बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग मैथ का, मैंने जस्ट एक आपको आइडिया दिया है कि ये चीज आपकी कई दफा कॉम्पिटिशन में आपके काम आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे उन चीजों को वेरीफाई करना है जो चीजें मैंने पीछे लिखी थी, 3 चीजें। अब मेरे को ये 2 इक्वेशन चाहिए, इनको मैं लिख लेता हूं और बाकी सब मैं रब कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अगर आपको डाउट होगा कोई बेटा तो उसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पेन डाउन कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों। अब ये यहां साइड में लिख लेते हैं, आर वेक्टर मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट। और सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये है बेटा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर मॉड साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा। राइट बच्चों, ये 2 इक्वेशन मेरे पास हैं। ठीक है, इनको यूज करना है मुझे। लो बच्चों, पहला केस क्या था मेरे पास ग्राफिकल मेथड का, व्हेन 2 वेक्टर्स एक्ट अलोंग सेम लाइन। तो अगर वो सेम लाइन के अलोंग काम करेंगे बच्चों, दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर, व्हाट इज थीटा, दैट इज 0 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको वही रोमन 1 रोमन 2 नंबर तो आप डाल चुके, तो मुझे नंबर वही रखने पड़ेंगे जो आपने नोट्स में डालनी है आपने। आर वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस ऑफ 0 डिग्री। और हम ये पढ़कर आए हैं बच्चों, कॉस 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड इंटू बी वेक्टर मॉड अंडर द रूट। मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो क्या बन जाएगा सॉल्व करके, ये ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड होल स्क्वायर अंडर द रूट, और सॉल्व करके आ जाएगा ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड। तो चेक कर लो, अगर जब मैंने दोनों को जोड़ा था और ये साथ में बी लगा दिया था, मैंने कहा था ये आर वेक्टर होगा आपका, तो व्हाट इज आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, इन दोनों की लेंथ के सम के बराबर आएगा। ठीक हो गया बच्चों, सेम चीज प्रूव हो गई है मेरी। अब डायरेक्शन की बात करनी है, टेंजेंट बीटा क्या बन जाएगा, वो बी वेक्टर मॉड साइन ऑफ 0 डिग्री अपॉन ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड कॉस ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है बच्चों, तो इट मीन 0 बाय समथिंग। समथिंग क्या है यहां पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड 0 आ जाएगा। और टेंजेंट 0 कब होता है, अगर बीटा 0 डिग्री हो। अब चेक करो ध्यान से, मैंने क्या बताया, जो मेरी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अभी दोबारा बना देता हूं मैं। मेरी जो ट्रायंगल थी अभी, यही ट्रायंगल थी, इसमें ये एंगल बीटा था, आर का एंगल विद ए वेक्टर बता रहा, पूछ रहा है वो आपसे कितना है, क्योंकि मैंने जो फिगर में ए वेक्टर के साथ एंगल निकाला है, ये तो ए के साथ कितना एंगल है, 0 डिग्री है, तो सेम 0 डिग्री आ गया।
तो मैंने क्या कहा था वो मैं ग्राफिकली ऐड कर रहा हूं, अभी एनालिटिकल इमेज इसका कितना मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है, वो मेरे को इस मेथड से निकलेगी। ठीक है, सेकंड केस। अब मैं इधर रब कर देता हूं क्योंकि मेरे पास दोनों इक्वेशंस वहां आ गई हैं। सेकंड केस, when two vectors act along opposite lines. Second case, when two vectors act along opposite lines, that is, अगर मान लो ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। अभी मैंने आपको बताया एंगल निकालने के लिए कोई टेल टू टेल पुट करो, अभी बताया जस्ट मैंने 1 मिनट पहले। तो व्हाट इज एंगल? थीटा 180 डिग्री। तो अगेन व्हाट इज आर वेक्टर मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस ऑफ 180 डिग्री। व्हाट इज कॉस 180 डिग्री? -1 होता है बच्चों, क्योंकि कॉस 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, वहां पर कॉस नेगेटिव होता है माइनस साइन 90। ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में किया होगा। तो ये बन जाएगा माइनस, तो दिस इज 2 ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड -1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सारा सॉल्व करके बन जाएगा ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो व्हाट इज दिस ए वेक्टर मॉड माइनस बी वेक्टर मॉड, दिस इज। तो देख लो मैंने क्या बनाया था उस समय कि ये आपके पास एक वेक्टर ए था, फिर मैंने इसके ऊपर ये वेक्टर बी प्लॉट किया था। अगर आपको थोड़ा सा भी पीछे पेज पलटोगे आप अपने, दिस वाज माय बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर था आपका, और लाइन ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट ये आर वेक्टर था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड आज आया है वो दोनों की लेंथ के माइनस है। यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, बी केयरफुल। जो मैंने ग्राफिकल मेथड किया था कुछ बुक्स में, आई एम नॉट नेमिंग है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बुक, इट इज ओनली ए प्रिंटिंग मिस्टेक, वहां माइनस लिखा हुआ है कुछ बुक्स के अंदर। तो जहां माइनस लिखा हुआ है, जब मैंने ग्राफिकली ऐड किया है तो आपका सारा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा बच्चा, मिसकंसेप्शन हो जाएगी, तो वहां प्लस आएगा, क्योंकि मैंने उस समय ग्राफिकली में सिर्फ उनको ऐड करना सीखा है। और उसका मेथड क्या है? ड्रॉ एनी वन ऑफ देम, पहले ड्रॉ कर लो एक को, उस पे सेकंड की टेल पुट करके चलो उस तरफ जहां भी जा रहा जाने दो उसको, और फिर हेड टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो मेरा मेथड सिर्फ एडिशन का है बच्चों, तो इसलिए आई हैव टू बी केयरफुल। तो यहां पर ये प्लस आएगा। हाँ, अब जब मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला है वो दोनों की लेंथ के माइनस है। ठीक है, अभी डायरेक्शन की बात कर देते हैं, साथ साथ टेंजेंट बीटा की बात कर देते हैं। व्हाट इज टेंजेंट बीटा? क्या हो जाएगा वो? बी वेक्टर मॉड साइन ऑफ 180 अपॉन ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड कॉस ऑफ 180। साइन 180, साइन 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस 90 0, तो 0 बाई समथिंग 0 आ जाएगा, और बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। चेक कर लो बेटा, यहां पर अभी मैं बनाया, देखो जो आर वेक्टर है उसका एंगल विद ए वेक्टर कितना है? दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर कोई आ रहा है इधर कोई ए, तो क्या हो गया? 0 हो गया। वही मेरे पास यहां आ गया है, और यही बीटा जो ट्रायंगल मैंने बना के, जो मेरी बेसिक ट्रायंगल चल रही है, अगेन चेक कर लो, मैं एंगल विद ए वेक्टर निकाल रहा हूं, आर का वेक्टर, तो कितना आ गया वो? ये बीटा कितना आ गया? 0 आ गया। दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो यहां तक बच्चों को डाउट हो आपको, अभी थर्ड केस भी करना है मुझे, क्योंकि पहले प्लस और माइनस को मुझे क्लियर करना है। ठीक है बच्चों, थर्ड केस। अब देखो थर्ड केस में क्या है। मैं फिर करूं, जहां कहीं आपको डाउट लगता है अपनी वीडियो को पॉज करो और आराम से उसको देखो, स्टेप सॉल्व कर लो बैठ के। थर्ड केस, when two vectors are perpendicular to each other, मैं पूरा वर्ड लिख देता हूं, शॉर्टकट नहीं लिखता मैं, perpendicular to each other। इसका मतलब क्या है? थीटा कितना हो जाएगा? एक वेक्टर ये ए है सपोज,
और ये वेक्टर बी है, एक दूसरे के 90 के एंगल पे बच्चों आज ये, तो व्हाट इज थीटा, 90 डिग्री, राइट। तो व्हाट इज योर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड cos of 90 डिग्री, राइट। एंड व्हाट इज cos 90, 0। तो व्हाट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर अंडर द रूट। व्हाट इज टेंजेंट बीटा, डायरेक्शन क्या है बच्चा, वो क्या बन जाएगी, बी साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड cos ऑफ 90, तो ये आ जाएगी बी वेक्टर मॉड अपॉन ए वेक्टर मॉड प्लस 0। तो टेंजेंट बीटा सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों बी वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड। ऐसा क्यों आया ये वो भी देख लो, क्योंकि अगर 90 का अगर एंगल है, एक ये मेरे पास एक ये है, एक ये है, तो दिस इज माय बीटा, चेक कर लो बीटा क्या होगा, बी बाय ए ही तो होगा यहाँ पर भी, इस एंगल में भी, क्योंकि अब ये 90 के एंगल के ऊपर अभी है, 90 के एंगल के ऊपर अभी है। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको तीनों के अंदर? मैंने आपका क्या किया, वेक्टर एडिशन यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने इसको सॉल्व किया बच्चों आपके लिए। उसमें मैंने जो है तीनों केसेस भी कर लिए हैं कि जब वो सेम लाइन के अलॉन्ग है, जब वो अपोजिट लाइन के अलॉन्ग है, और जब एक दूसरे के 90 के एंगल पे काम कर रहे हैं। अगर एंगल अदर देन 90 हो तो मैंने ड्राइव कर ही लिया, ये मेथड है। थीटा दिया होगा मुझे, जो मेरे पास फॉर्मूला आया था जिसको मैंने नंबर 1 और 2 लिखा, मुझे थीटा उसको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 60 बन जाएगा मेरा, वो तो पुट कर दूंगा। तो मेरा तीन ही केसेस बनते थे, जब एंगल 0 डिग्री हो, जब एंगल 90 डिग्री हो, या एंगल 180 डिग्री हो। तो पहले मैंने 0 वाली बात की है, फिर मैंने 180 की बात की और फिर मैंने 90 की बात की है। तो अभी मैंने किया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक और मेथड है मेरे पास इसको ऐड करने के लिए, दैट इज नोन एज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Next is parallelogram law of vector addition. Second method is parallelogram, P-R-A-L-L-E-L-O-G-R-A-M, parallelogram law of vector addition. राइट बच्चों, इसको डिस्कस करना है मुझे। अगेन ये एक मेरे पास वेक्टर A है, ये मेरे पास वेक्टर B है। मैंने सर्टेन फैक्ट्स में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि व्हेन अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली, इसको उठा के मैं यहां ले आया, देयर इज नो चेंज इन वेक्टर। व्हेन ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, व्हेन ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये मेरा बी वेक्टर था बेटा, इसको पैरेलली मैंने यहां शिफ्ट कर दिया है। नाउ इट इज माई बी वेक्टर। चेक करो क्या ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, चेक करो बेटा जी। मैं थोड़ा दोबारा फिगर बना रहा हूं क्योंकि वो ड्रॉ किया तो वो प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुई मुझसे, मैं दोबारा बना रहा हूं फिगर को। दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज बी, दिस बी इज शिफ्टेड पैरेलली अप टू हेयर, यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो अब ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। अब ये ओ है, सपोज ये पी है और ये क्यू है, इसको नया नाम दिया मैंने एस। आर मैंने क्यों, क्योंकि आर मैंने अभी रिजल्टेंट के लिए यूज करना है, ये आर रिजल्टेंट है। अब वो क्या कह रहा है बेटा, पहले डेफिनेशन को आराम से सुनो। क्या है ओपी और ओ एस दो इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड नहीं है? बिल्कुल है। If two vectors are represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, by two adjacent sides of a parallelogram, then
then their resultant is represented both in magnitude and direction by diagonal of पैरेललोग्राम। अब यहां रुक रहा हूं मैं, ये रफ बना रहा हूं, दिस इज माय रफ फिगर। ये एक भाई आपने कहा मेरी एक पैरेललोग्राम है, इसके तो दो डायगोनल है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दो है, एक नंबर 1 और एक नंबर 2, दो डायगोनल है इसके। ये दो, अब मैंने कहा है कि ये दो एडजेसेंट साइड हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपने दो एडजेसेंट साइड अभी सपोज किए, वो जहां पर मीट कर रही है वहां से जो पास कर रहा है, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through a point where sides meet। जो आपने जो दो साइडें सपोज किए वो मीट कर रही है जहां पर, ये बहुत जरूरी है लाइन, पासिंग थ्रू ए पॉइंट वेयर साइड्स मीट। बल्कि एक और वर्ड लगा दो यहां पर, वेयर एडजेसेंट साइड्स मीट, ऐसे कर दो, जो मैंने सपोज किए हैं एडजेसेंट साइड्स मीट, वो वर्ड लगा दो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी और लैंग्वेज के अंदर। अगेन माई लैंग्वेज इज टेक्निकल, मैं किसी भी शब्द को यहां से कम नहीं कर सकता, टेक्निकल लैंग्वेज है। व्हाट आई एम सेइंग, if two vectors are represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through the point where sides meet। तो जहां पर वो साइडें मीट कर रही हैं वहां से जो डायगोनल पास कर रहा है वो आपके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली बात तो डेफिनेशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको, ठीक है। अब मैं करूंगा इसका, अगेन मुझे एनालिटिकल ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। लो जी, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो ये एक मेरे पास पैरेललोग्राम है जो वहां भी ड्रॉ की हुई है, वो तो जस्ट मैंने उसमें डेफिनेशन में छोड़ दी, यहां मैंने नहीं बना ली। ये O है, ये P है, ये Q है, ये S है, ठीक है, ये R वेक्टर है, ये A वेक्टर है। तो ये अभी B तो ये भी है, अगर ये B है तो इसी को तो शिफ्ट किया मैंने वहां पर, यहां से फिर नॉर्मल प्लॉट कर लिया मैंने। ये M है और ये थीटा एंगल है, दिस इज माय बीटा एंगल। मैंने इसको अब एनालिटिकली प्रूव करना है, अगेन इन ट्राइंगल OQM। आप ध्यान से देखो मेरा बच्चों, अगर मैं हटा लूं वही ट्राइंगल नहीं है सारी ये, तभी मैंने नाम भी सेम रखे हैं ताकि दिक्कत ना आए आपको। सारा मैथमेटिक्स एज इट इज कॉपी करना है। बात को फॉलो कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं इसको यहां अपना इसको छुपा दूं किसी चीज से, ये मैंने पेपर से छुपा दिया इसको, सेम नहीं बच गया ट्रायंगल। तो अब बेटा जी मैं उसको किसी भी लॉ से ऐड करूं, रिजल्ट तो दोनों से ही सेम आएगा ना, रिजल्ट विल नॉट चेंज। इसलिए वही मेथड चलेगा, वही ओ क्यू स्क्वायर बराबर है ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, वही सेम चीज पुट करूंगा। तो एज इट इज आपने पेन डाउन करना। मैंने जान के नाम सेम रखे आपके उसके कन्वीनियंस के लिए, आपके फायदे के लिए मैंने नाम सेम रखे बच्चा यहां पे, ताकि आपको ये डाउट ना रहे। क्योंकि देखो मैंने वेक्टर्स को ऐड करना है, राइट। दो मेथड है मेरे पास, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है। ट्रायंगल लॉ का मैंने सारा मैथ किया आपके लिए। अब जब पैरेललोग्राम से ऐड करो तो रिजल्ट डिफरेंट कैसे आ सकता है? रिजल्ट तो सेम आएगा ना बच्चा, वो तो सिर्फ तरीका है उनको अलग अलग ऐड करने का। तो तभी मैंने नाम सेम रखे। इसके बाद डिट्टो एज इट इज सारा कॉपी कर दो, सारा कॉपी कर दो, कुछ भी एक भी शब्द नहीं छोड़ना आपने। पहले आर निकालो, फिर टेंजेंट बीटा निकालो, फिर दोनों तीनों केसेस करो। सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो एग्जाम में अगर आपको ट्रायंगल लॉ आ जाए या पैरेललोग्राम आ जाए, दोनों का प्रूफ सेम रहेगा, दोनों का एनालिटिकल ट्रीटमेंट सेम रहेगा। सिर्फ फर्क कहां पड़ेगा बेटा? उनकी डेफिनेशन में फर्क पड़ेगा। तो इज इट क्लियर?
तो वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप अपने नोट्स में अभी आपने जो अगर पेन डाउन कर रहे हो सारी चीजें, आप अभी आपने ट्रायंगल लॉ का मैथ्स किया था, देखो वहां पर आपके 2 पेज लगे हैं, 2.5 पेज लगे हैं, वो 2-2.5 पेज यहां छोड़ दो, आगे काम नोट करो, उसको आराम से पेन डाउन कर लेना, ठीक है? या वीडियो ड्रॉप करके स्टॉप कर लो, पहले उसको पेन डाउन कर लो, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है बेटा? अभी तक मैंने क्या बात की आपसे? 2 वेक्टर्स को ऐड करने की बात की है। मैंने क्या बात की है बच्चों? कि मुझे 2 वेक्टर्स को ऐड करना था, और तो कोई बात नहीं की। इससे मैं एक छोटा सा काम और करना चाहता हूं, मैं छोटा सा काम और करना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन कई दफा आया वो, और हर बच्चे को क्वेश्चन वो फिर क्रैम करना पड़ता है। मेरे पास एक ही वेक्टर है आर वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, और एक मेरे पास ये बी वेक्टर है, राइट? एक मेरे पास क्या है? ए वेक्टर है, और एक मेरे पास बी वेक्टर है। अब मुझे कुछ नहीं पता किस डायरेक्शन में काम करते हैं। मैंने कहा भी अगर वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, अब मैं पढ़ चुका हूं व्हाट इज आर वेक्टर मॉड, ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसकी, मैक्सिमम वैल्यू। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो ए वेक्टर मॉड माइनस बी वेक्टर मॉड, ये मिनिमम वैल्यू आएगी उसकी, और वैल्यू यहां से यहां वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन एंगल थीटा बिटवीन देम। अगर थीटा 0 है तो मैक्सिमम, थीटा 180 है तो मिनिमम, और अगर थीटा इन बिटवीन है तो इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई करेगी उसकी। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को कि मेरे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी हैं। जब मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इट इज वेरी मच क्लियर, अंडरस्टूड है ये। तो 2 वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर ए है, ये क्वेश्चन है बेटा बेसिकली कंपटीशन का है कि 2 वेक्टर्स हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो ये आ जाएगा। एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूं, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है? अगर कोई एंगल होगा तो उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। इसका मतलब ये हो गया है, अगर 2 वेक्टर है मेरे पास और मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया, मींस सेम प्लेन में है। अगर 2 वेक्टर हैं और वो सेम प्लेन के अंदर है, उनका और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, उनका रिजल्ट 0 नहीं हो सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 वेक्टर हैं, एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो उनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक हो गया? इसका मतलब अगर मुझे रिजल्टेंट 0 करना पड़ता है, यहां देखते हैं, अब हम जरा यहां देखेंगे इसको ड्रॉ करके, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, तो ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट 0 करना है तो मुझे एक वेक्टर और चाहिए इसके बराबर, तब 0 होगा ये। उसको मैं डिफरेंट पेन से ड्रॉ करके, ताकि डिस्टिंक्शन आ जाए आपके लिए। थोड़ी फिगर भी बड़ी बनाता हूं तभी डिस्टिंक्शन आएगी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दिस इज ए वेक्टर, ये मैंने बाहर प्लॉट किया, दिस इज माई बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अगर इस बी वेक्टर और ये बी वेक्टर ऊपर, अगर इसमें मैं कुछ और ऐड करूं तभी रिजल्टेंट 0 आएगा, ये ऐड करूं और, अब तो देखो दोनों बैलेंस हो गए, ऊपर नीचे 0 आ गया। तो एक क्वेश्चन नोट कर लो, 3 minimum number of vectors required for 0 resultant in same plane is 3. Minimum number of vectors required to make resultant in a plane is 3. कम से कम 3 वेक्टर चाहिए आपको अगर आपने उनका रिजल्टेंट 0 करना है, और वेक्टर कैसे हैं? अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो ये कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम बच्चा एकदम कंफ्यूज हो, 2 लिख देता, तभी अपोजिट हो गया तो खत्म हो गया। वो अनइक्वल वर्ड को पढ़ना भूल जाता है बच्चा वो। तो व्हाट ही सेड कि इफ देयर आर 3 वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन द सेम प्लेन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर रिक्वायर्ड? आंसर 3 है। या व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर रिक्वायर्ड टू मेक द रिजल्टेंट 0? कोप्लेनर मींस, ये हम पढ़ चुके हैं सर्टेन फैक्ट्स के अंदर फर्स्ट लेक्चर में, कोप्लेनर मींस एक्टिंग इन द सेम प्लेन। तो बेटा एक छोटा सा एक बनता था यहां से, तो मैंने कहा चलो सासा उसको आपको क्लियर कर दूं। ठीक है बच्चों? हाँ जी, अभी तक मैंने बात की है आपसे 2 वेक्टर को ऐड करने की बात की है। वेक्टर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वेक्टर के आपके 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मुझे नेक्स्ट करना है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, मैं बना इसको क्वेश्चन ही पूरा लिख देता हूं मैं। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ unequal magnitude required to make resultant 0 will be 3। 3 वेक्टर चाहिए हो आपके, ठीक है बच्चों। मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर रिक्वायर्ड जो है आपको 3 चाहिए। अगर वेक्टर नॉन कोप्लेनर हुए तब क्या होगा, नॉन कोप्लेनर मींस वो सेम प्लेन में नहीं है। 2 तो ये थे, मान लो ऐसे खड़ा कर दिया मैंने, अब रिजल्टेंट कैसे, तो फिर मुझे 4 चाहिए। एक यहां खड़ा कर दिया ऐसे, एक ए बी, तो अब ये चौथा भी चाहिए मुझे, तो नॉन कोप्लेनर में 4 चाहिए। एक और क्वेश्चन बनता है यहीं पर, अगर तीनों का प्लेन अलग अलग है लाइक दिस, एक प्लेनो बोर्ड के अंदर है, एक ऐसे खड़ा हुआ है, एक ऐसे खड़ा है, तब तीनों आपको तीनों शब्द ध्यान रखने पड़ेंगे। ये कोप्लेनर की बात कर रहा हूं, ये नॉन कोप्लेनर की बात करो, मीन सेम प्लेन में नहीं है। अब इफ यू यूज द वर्ड ऑल आर एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन, क्योंकि जब नॉन कोप्लेनर में उसे ये नहीं नॉन कोप्लेनर कब हो जाएंगे, 2 एक प्लेन में, एक थर्ड, दिस इज नॉन कोप्लेनर, दिस इज नॉन कोप्लेनर। आर यू गेटिंग मी? ये बोर्ड पे ड्रॉ किए मैंने, जो मेरे बोर्ड पे ड्रॉ रही है सारे एक ही प्लेन में आ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर, दीज आर कोप्लेनर। ये पढ़ चुका हूं मैं अभी इन द सर्टेन फैक्ट्स। अब इफ आई एम यूजिंग द वर्ड नॉन कोप्लेनर, तो उसने मुझे ये कहीं नहीं कहा कि तीनों अलग अलग प्लेन में है, उसने ये कहा है कि उसमें से एक अलग प्लेन में हो सकता था। 2 ये वाले थे और एक ये। अब मुझे कितने चाहिए, 4 चाहिए वेक्टर टू मेक द रिजल्टेंट 0, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे और फिर चौथा वेक्टर चाहिए होगा मुझे। हां, अगर तीनों के ही प्लेन अलग अलग हैं तो फिर रिजल्टेंट 0 हो सकता है उसका। तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 हो, या तो वो कोप्लेनर हो, या तीनों के अलग अलग प्लेन हो, या अगर वो नॉन कोप्लेनर है तो मुझे 4 वेक्टर चाहिए। ये कंपटीशन का क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ये ऐड करने के बाद ही आ सकता समझ आपको, क्योंकि जब आपने ये पढ़ लिया है तो दिस विल बी। अब ये जो क्वेश्चन है आप चेक कर लेना बुक उठा के, जो मैंने भी लास्ट में बताया कि अगर तीनों के प्लेन डिफरेंट है, देखिए लास्ट ईयर शायद आपका जेई एडवांस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन ये, तो यू कैन चेक इट, राइट। चलो आगे चले बेटा जी। नेक्स्ट है मेरे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने 3 चीजें बताई हैं यहां पर, अपना वीडियो को पॉज करके मैं जो बोल रहा हूं उसको पेन डाउन कर लेना। अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, तो 3 वेक्टर चाहिए। अगर नॉन कोप्लेनर है तो नॉन कोप्लेनर के अंदर ये कोई श्योरिटी नहीं है कि तीनों का प्लेन अलग अलग है, 2 का सेम, 1 का अलग हो सकता है, तो दैट इज, तो फिर मुझे 4 वेक्टर चाहिए होंगे। हां, अगर तीनों के ही डिफरेंट प्लेन है तब फिर ट्रायंगल बन जाएगी, तो मुझे फिर 3 चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जो लास्ट मैंने बताया ना तीनों का डिफरेंट है, ये लास्ट ईयर आया हुआ है जेईई मेन एडवांस के अंदर। ये नेक्स्ट है मेरे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। मेरे पास बहुत सारे वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक सपोज ये वेक्टर है, एक ये सपोज वेक्टर है। इनके नाम भी रख देता हूं मैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। अभी ज्वाइनिंग का रूल मेरा ग्राफिकल क्या है, वो ये है भाई, पहले ए को ड्रॉ करो, उस पर बी प्लॉट कर दो, फिर उसके ऊपर सी प्लॉट कर दो और ये डी प्लॉट कर दो। तो देख लो जुड़ गए भी सारे वेक्टर, ये जोड़ तो दिया मैंने इनको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। रिजल्टेंट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये लाइन। जब तक मैंने ये लाइन ड्रॉ नहीं की थी, अभी मैं फिगर 2 बना रहा हूं आपकी क्लैरिटी के लिए। अगेन ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये लाइन अब ज्वाइन कर दी मैंने। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है,
ये आर वेक्टर आ गया। तो व्हाट इज आर वेक्टर? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी के मैंने सबको सिर्फ ऐड किया, रिजल्ट क्या आएगा आई एम नॉट बॉदर्ड, क्या है वो बाद में देखेंगे क्या आएगा। ये सिंपली ये शो कर रहा है कि आपने इनको ग्राफिकली ऐड किया है। नाउ व्हाट इज दिस लॉ? इट स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स are represented both in magnitude and direction by sides of an open polygon taken in same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। मैंने इसलिए आपके लिए दो फिगर बनाई थी, एक ओपन पॉलीगन जिससे अभी सर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, जब उसको क्लोज कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट आ गया। तो देखो लैंग्वेज वही है मेरी। इट स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, दिस इज माय सेम ऑर्डर, then the resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon. Is it clear बच्चों? तो हम इसको ग्राफिकली करेंगे, एनालिटिकली करनी करेंगे, क्यों? वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। तरीका वही रहेगा, पहले इन दो को ऐड करना पड़ेगा मुझे ट्रायंगल लॉ से, फिर रिजल्टेंट आएगा, फिर इसको उठाऊंगा, फिर ऐड करूंगा इनको मैं, फिर ऐड करके लास्ट में ये निकाल दूंगा। तो मुझे जब मैंने एडिशन का मेथड पढ़ लिया है तो जब न्यूमेरिकल आएगा वहां इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है हमें। ठीक है बच्चों? तो दिस इज योर पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो अगर मुझे प्रूफ करना भी पड़ता है यहां तक पहुंचने के लिए, मैं प्रूफ कर सकता हूं आपके लिए, ताकि आपको ये मैं रब कर रहा हूं, और अगर आप पेन डाउन करना है बेटा वीडियो को स्टॉप करके पेन डाउन कर सकते हो आप। लो बच्चों जी, अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं फॉर योर कन्वीनियंस। इनको नेमिंग कर देता हूं, ये O है, ये P है, ये Q है, ये S है और ये T है। अब फिगर यहां बना रहा हूं क्योंकि वो बड़ी हौच-पच रहेगी, फिगर थोड़ी यहां बना लेता हूं अपनी। मैंने फिगर बना ली O P Q S और ये T। ये मेरा R वेक्टर है, ये मेरा A वेक्टर है, ये मेरा B वेक्टर है, ये मेरा C वेक्टर, ये D। पहले मैंने इसको ज्वाइन किया भाई, ये ज्वाइन किया इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ। हाँ जी, क्या आ जाएगा बच्चों? OQ वेक्टर बराबर है OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, मींस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक हो गया, दोनों जुड़ गए ये। नेक्स्ट स्टेप, इन ट्रायंगल OQS के अंदर, इन ट्रायंगल OQS, हाँ जी, OQ वेक्टर सॉरी OS वेक्टर बराबर है OQ वेक्टर प्लस QS। व्हाट इज OQ? अभी आपने ऊपर ऐड किया है, दैट इज A प्लस B वेक्टर और साथ में प्लस ये C वेक्टर, तीनों ऐड हो गए बच्चा जी। इन ट्रायंगल OST, OST हाँ जी, व्हाट इज OT वेक्टर? बराबर है OS वेक्टर प्लस ST वेक्टर। व्हाट इज OT वेक्टर? दैट इज R वेक्टर। व्हाट इज OS? आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। और व्हाट इज ST? D वेक्टर। चेक कर लो, सॉरी चेक कर लो बच्चों। मैथमेटिकल प्रूफ में नहीं जाऊंगा मैं इसके बेटा, उसमें मुझे कोई जरूरत नहीं जाने की, नो नीड बियॉन्ड माई लिमिट। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अननेसेसरी मैंने माइंड में प्रेशर क्यों डालना है? मुझे वेक्टर जब भी आएंगे मैं पहले दो को ऐड कर लूंगा, रिजल्टेंट निकाल के, और अगर ज्यादा होंगे तो उसके मेथड और भी है मेरे पास, अभी आगे डिस्कस करेंगे। गेटिंग में बात समझा रहे हैं मेरा बेटा? अगर वेक्टर ज्यादा है तो मेथड और भी है मेरे पास, अभी देखते हैं आगे चल के कैसे करना है। तो जस्ट मैंने यही आपको प्रूव करके दिखाया कि अगर वेक्टर दो से ज्यादा हो जाएंगे तब भी मेरा मेथड वही रहेगा एडिशन का, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन वाला। ठीक है,
अब मेरे पास इन वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, अब वो प्रॉपर्टीज क्या है वो भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले मैं सारा डिस्कस करूंगा तभी तो फिर पहुंच पाऊंगा मैं किसी कंक्लूजन के ऊपर कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी कि जो वेक्टर एडिशन है वो आपके, पहली बात, हाँ सबसे पहली बात जो है वो, बाकी सारी बातें बाद में आएंगी। वेक्टर ऑफ सेम नेचर अलोन कैन बी एडिड। वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोन कैन बी एडिड। मतलब क्या है इस लाइन का? इसका मतलब ये है कि अभी मैंने जब आपका ये स्टार्ट किया है तो एग्जांपल ये थे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मैंने कहा था वेलोसिटी जो है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, शायद मैंने वहां पर मोमेंटम को भी वेक्टर क्वांटिटी कहा हुआ है, मोमेंटम को। तो ये नहीं कि मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है जमा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ये ऐड नहीं होंगे, कैन नॉट बी एडेड। वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोन मतलब या तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर होंगे या दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर होंगे। तो पहला क्या है? वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। दैट इज लिख रहा हूं मैं इस बात को जो मैंने लिखी आपके लिए। वेलोसिटी वेक्टर कैन बी एडेड टू velocity vector only, not to any other vector। वो सिर्फ velocity vector में ही ऐड हो सकता है अगर velocity vector दिया हुआ है। अगर एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन में ही ऐड होगा, स्केलर प्लस वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि स्केलर का कोई वही नहीं है मेरे पास, डायरेक्शन ही नहीं है, तो ऐड नहीं होंगे। ठीक है मेरा बच्चा? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है। सेकंड इज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। Addition is commutative. That is a vector plus b vector is equal to b vector plus a vector। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है अभी जो बनाकर आया पीछे भी में। दिस इज माई a वेक्टर, दिस इज माई b वेक्टर, दिस इज माई b वेक्टर, दिस इज माई a वेक्टर, दिस इज o, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज s। इन ट्राइंगल OPQ, हाँ जी, व्हाट इज OQ इज इक्वल टू OP प्लस PS। और व्हाट इज OQ? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इन ट्राइंगल OSQ, इन ट्राइंगल OSQ, हाँ जी बच्चों क्या हो जाएगा? OQ बराबर है OS प्लस SQ वेक्टर, मीन्स R वेक्टर बराबर है B वेक्टर प्लस A वेक्टर। दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। राइट बच्चों? कोई डाउट है बेटा इसके अंदर? थर्ड प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसो, ये देख लो बेटा आराम से। कॉम्यूटेटिव इन ट्रायंगल OP, पहले ट्रायंगल मैंने ली नीचे वाली, तो नीचे से मेरे पास रिजल्ट आ गया R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। फिर मैंने वही काम किया ऊपर वाले ट्रायंगल से, वहां आ गया सेम रिजल्ट B वेक्टर प्लस A वेक्टर। इट मींस A वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर है B वेक्टर प्लस A वेक्टर। ठीक है बच्चों? थर्ड प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव पूरा लिख देता हूं मैं इसको। वेक्टर एडिशन is associative, that is A vector plus B vector plus C vector is equal to A vector plus B vector plus, मीन्स आप पहले A और B को ऐड करके उसमें C ऐड करो या B और C को उसमें ऐड कर दो, एक ही बात है। लो जी, ये मेरे पास एक A वेक्टर है,
ये मेरे पास एक बी वेक्टर है और ये मेरे पास एक सी वेक्टर है और ये इनका रिजल्टेंट है बच्चों आर वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है और ये एस है। प्रूफ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, हाँ जी क्या आएगा, ओ क्यू वेक्टर बराबर है ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, मीन्स इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन ट्राइंगल ओ क्यू एस, ओ एस बराबर है ओ क्यू प्लस क्यू एस, मीन्स ए वेक्टर प्लस, इसको पहले मैं ऐड कर चुका हूं, प्लस सी वेक्टर। अब अगेन मैंने पहले अब इसको बी और सी को ऐड कर लिया। इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो व्हाट इज पी एस बराबर है पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इन ट्राइंगल, पहले मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ओ पी एस, हाँ जी क्या बन जाएगा, ओ एस वेक्टर बराबर है ओ पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर, मीन्स ए वेक्टर प्लस बी और सी को मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं, तो दोनों को इनको कंपेयर कर लो, चेक कर लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चेक कर लो बेटा, सेम आ रहा है। सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, राइट बच्चों, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो इस प्रॉपर्टीज में कोई डाउट हो बच्चों आपको, प्रॉपर्टीज में कोई डाउट हो बच्चों आपको, प्रॉपर्टीज में कुछ डाउट हो बच्चों आपको, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज में डाउट हो। अभी तक मैं बात एडिशन की बात कर रहा हूं, मुझे थोड़ी सी बात सब्ट्रैक्शन की भी करनी है, फिर हम न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे बेटा, ठीक है। रब कर दूं मैं इसको, मुझे थोड़ी सी बात किसकी करनी है बच्चों, सब्ट्रैक्शन भी करनी है, फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे बेटा। लो जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करनी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करनी है मुझे। मेरे पास एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर मेरे पास ये बी वेक्टर है, राइट। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे ये कहा गया कि मुझे ए माइनस बी निकालना है, ये रिजल्टेंट आएगा क्या, ये इसके बराबर नहीं है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। जरा देखिए ऊपर से, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, तो ये नीचे को माइनस बी वेक्टर नहीं होगा, ये इसको डॉटेड ड्रॉ करता हूं मैं। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन मुझे सारा करना आता है, फर्क क्या पड़ेगा, ये एंगल मेरे पास क्या था, थीटा। अब मैंने एंगल कैसे निकालना है, टेल टू टेल पुट करके। ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, दिस विल बी माइनस बी वेक्टर। रिजल्टेंट कौन सा होगा आज, ये वाला होगा रिजल्टेंट, क्योंकि ये क्या बन गई है, दो एडजेसेंट साइड्स बन गई हैं। उन अभी कहा आपको इन पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, क्या कहा मैंने आपको, ये कहा था द if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the point where sides meet। तो आज diagonal ये वाला हो जाएगा मेरा। तो अब लगा दो, रिजल्ट मुझे पता है सर, अब मैं मैथ नहीं करूंगा, यहां सिर्फ रिजल्ट करूंगा। तो व्हाट इज आर वेक्टर मॉड स्क्वायर या इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड प्लस माइनस बी वेक्टर मॉड प्लस 2 ए वेक्टर मॉड इंटू माइनस बी वेक्टर मॉड
इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि नहीं फिर मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये स्केयर आएगा, ये स्केयर आएगा, कोई डाउट हो? अब जो ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये स्केयर है इसलिए प्लस हो रहा है। ये डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं यहां पर जो b प्लस स्केयर लिख रहा हूं इसका माइनस नो मैग्नीट्यूड। देखो ये वेक्टर कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है ये a वेक्टर? सपोज अगर मैं माइनस a वेक्टर लिखूंगा लेंथ तो उसकी भी 4 सेंटीमीटर ही आएगी, इसलिए ये प्लस हुआ है। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये माइनस को स्केयर किया तो प्लस हुआ है। ये वेक्टर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड हमेशा एक क्वांटिटी है, सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। प्लस 2 ए वेक्टर मॉड, ये वही बी वेक्टर मॉड बन गया है, कॉस 180 माइनस थीटा। इसको गलती से भी सॉल्व करके माइनस कॉस थीटा मत पुट करना, ये मैं आज बता रहा हूं आपको। अगर कर लोगे इसको न्यूमेरिकल में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे फिर आप। तो मेरी जॉब क्या रहेगी, वहां पर मुझे एक वेक्टर ए पता होगा और मैं वहां क्या करूंगा, ये माइनस बी निकाल लूंगा, इसको आराम से कोई नया नाम दे लो, चाहे इसको सी वेक्टर नाम दे लो, तो मुझे ए और सी को ऐड करना है भाई। ए और सी के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल है। तो इसलिए गलती से भी यहां पर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा को सॉल्व मत करना, गलती से भी। अगर आप इसको सॉल्व करके रिजल्ट याद करोगे तो कभी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। डायरेक्शन की बात करनी है, टेंजेंट बीटा क्या होता है बेटा, बी वेक्टर मॉड साइन ऑफ, क्योंकि थीटा होता है, आज एंगल ये है मेरे पास, अपॉन ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड कॉस ऑफ 180 माइनस। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे आपको। न्यूमेरिकल सारी चीजों को करूंगा मैं बार बार कह रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये माइनस का स्केयर किया तो पॉजिटिव आ गया। ए वेक्टर है, लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो माइनस ए वेक्टर की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, तो ये मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए ये जो पॉजिटिव आया इसके स्केयर की वजह से नहीं आया, उसकी वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, अदरवाइज तो फिर यहां माइनस आना चाहिए था। ठीक है ना बच्चों, इट मींस उसके मैग्नीट्यूड ही पॉजिटिव होता है, राइट। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आप चले आगे। नेक्स्ट मिक्स का एग्जांपल करता हूं मैं, पहले सब्ट्रैक्शन के और फिर मैं एडिशन का न्यूमेरिकल करूंगा, वो सारे मिक्स हो जाएंगे, उसमें एडिशन भी आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन सब कुछ आ जाएगा। पहले मैं स्पेशली सब्ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल करूंगा आपके लिए। एक न्यूमेरिकल मेरे पास ये है सब्ट्रैक्शन के लिए, इसको आप इलस्ट्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो या प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सब्ट्रैक्शन इलस्ट्रेशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम भी कर सकते हो, इट इज अप टू, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इलस्ट्रेशन मतलब ही प्रॉब्लम ही होता है। मेरे पास एक ये सर्कुलर पाथ है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, v, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। ये इसके दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट हैं, यहां भी स्पीड v है और यहां भी स्पीड v है, यहां भी स्पीड v है और यहां भी स्पीड v है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन गोइंग फ्रॉम A टू B, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन गोइंग फ्रॉम A टू B। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर्कुलर पाथ है, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। उनका मैग्नीट्यूड सेम है, वो चांस की बात है। मुझे क्या निकालना है, चेंज डेल्टा v वेक्टर निकालना है। वो हमेशा क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये रूल है चेंज का, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो मेरे वेक्टर लग गए बेटा जी, वेक्टर लग गए मेरे। इसका मतलब मुझे क्या करना है, vf प्लस माइनस vi करना है। और जैसे अभी ये सब्ट्रैक्शन करके हटाऊं मैं, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जब भी मैं वेक्टर की बात करता हूं, वेक्टर एडिशन की बात करता हूं या वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं,
वेक्टर की जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अलग होता है और डायरेक्शन निकालने का तरीका अलग होता है। तो हम पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो जब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो ये बार लग जाएगा इज इक्वल टू, हाँ जी अब इसको ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये तो है मेरे पास V1 और ये ड्रॉ किया मैंने, ये है मेरे पास V2। मुझे निकालना है V2 माइनस V1, तो माइनस V1 ये नीचे को आ जाएगा बच्चों। ये चेक करो, ये समझ आ रही फिगर आपको? मुझे इन दोनों को ऐड करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सिंपली उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं तो वो क्या आ जाएगा 2v आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो मैं रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को। मेरे पास एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। अब जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है मेरा बच्चों, उसकी स्पीड सेम है, लेकिन जब वो मूव करता है उसकी एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मुझे इनको अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। मैंने इसको नाम दिया V1, इसको नाम दिया V2। मुझे A से लेकर B तक जाने में चेंज निकालना है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल मींस V2 माइनस V1 निकालना है मुझे, या आपकी मर्जी VF लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये मेरा फाइनल हो जाएगा। अगर आप F लगाना चाहते हो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये मेरा F हो जाएगा फाइनल और ये मेरा इनिशियल है। तो ये नीचे को क्या बन गया, माइनस इनिशियल बन गया। अब ध्यान से देखो, मैं पढ़कर आया हूं ग्राफिकली। अगर मुझे दो वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनको ऐड करना है तो उनके एम्पलीट्यूड सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो मैंने तब भी कहा था कि मैं इसको यूज करूंगा, ग्राफिकल मेथड को भी यूज कर लिया। अब डायरेक्शन की बात करनी है भाई मुझे, डेल्टा वी वेक्टर। अब फिर वेक्टर लगा दिया मैंने, ये तो उसका आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहां होगी हमेशा, ये कहां काम करेगा, फाइनल की तरफ काम करेगा, क्योंकि डायरेक्शन दो ही दी है मुझे, या तो ये वाली या ये वाली। तो नीचे को काम कर रहा है कौन सी, फाइनल की, टूवर्ड्स VF। कोई डाउट हो बच्चे सब्ट्रैक्शन में? अभी मैंने वो ये वाला ड्रीम यूज किया, अभी मैंने आपका ग्राफिकल मेथड वाला यूज किया रूल के, उसको मैं कैसे यूज करूंगा अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? चलें आगे। ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा ये रूल आपके पास। ये सब्ट्रैक्शन की बेस्ट इलस्ट्रेशन है, ये सब्ट्रैक्शन की। देख लो बच्चों को डाउट हो इसके अंदर। अभी इसी इलस्ट्रेशन को एंगल पे भी उठा लेते हैं, चलो एंगल पे भी कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं अभी। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये पॉइंट B मार्क किया था मैंने, पॉइंट चेंज नहीं करता चलो मैं आपका। ये C है और ये D है। व्हाट इज चेंज इन, पहले तो याद यहां किया था मैंने, चेंज इन वेलोसिटी इन गोइंग फ्रॉम A टू B। A टू B गया था, यहां पर इन गोइंग फ्रॉम A टू C निकालनी है भाई आज मुझे। तो यहां पर वेलोसिटी आपकी ये है, V इनिशियल कर रहा हूं मैं इसको अब, और ये आपकी V फाइनल है भाई, V फाइनल। तो व्हाट इज डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो व्हाट इज डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल प्लस माइनस V इनिशियल। मुझे इन दोनों को ऐड करना है भाई। अब प्लॉट करो पहले यहां पर, दिस इज माई V फाइनल, दिस इज माई V इनिशियल, ये नीचे आ जाएगी, कितना है ये V माइनस इनिशियल। एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है भैया। आज मैंने तब भी कहा था मैं दोनों के बीच का एंगल चेक करूंगा, वो क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा मेरा। तो व्हाट इज रूल फॉर सब्ट्रैक्शन, पहले मैग्नीट्यूड निकालूंगा, क्या है बेटा जी वो V फाइनल स्क्वायर प्लस V इनिशियल स्क्वायर मॉड के अंदर माइनस साइन के साथ, प्लस एंगल 90 है 2V फाइनल माइनस V इनिशियल कॉस ऑफ 90 डिग्री अंडर द रूट। तो वो क्या आ जाएगी VF मॉड स्क्वायर प्लस V इनिशियल मॉड स्क्वायर कॉस 90 जीरो होता है बच्चों। दिस इज डेल्टा V वेक्टर मॉड।
वैल्यू कितनी है इनका, मैग्नीट्यूड कितना है दोनों के, मैंने कहा था कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रूट 2v। तो ये तो इसका आ गया मैग्नीट्यूड। अब बात करनी है डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड में कोई डाउट जा रहा हो बच्चों आपको? अब बात करनी है मुझे, डायरेक्शन की बात करनी है। डायरेक्शन देखो कैसे निकलेगी। अब ये तो डायरेक्शन मैंने बनाई, ये डायरेक्शन मेरी पक्के वाली है, इसको ये तो चेंज करके बनाई थी, पक्के वाली है। अब क्या रूल है मेरा, इनकी मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं पहले, वो चांस की बात है, यहां तो रेक्टेंगल बनेगी, एंगल बीटा विद द फाइनल वाले के साथ बीटा निकालना है, ये बीटा निकालना है, ऊपर वाला बीटा निकालना है। तो व्हाट इज टेंजेंट बीटा, चेक करो, माइनस वी आई वेक्टर मॉड अपॉन वी एफ वेक्टर मॉड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों की वैल्यू वी वी है 1, तो बीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। हाँ जी, एंगल भी यूज कर दिया मैंने सब्ट्रैक्शन के अंदर। कोई डाउट जा रहा हो आपको इसके अंदर? इस मतलब ये मैंने दोनों एक्सट्रीम केस कर दिए हैं, इसके बाद कोई केस नहीं बनता। वो तो ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे क्या बनाना है, लेकिन मैंने दोनों पॉइंट यूज कर लिए हैं जहां पर आपके पास एक तो विदाउट टेंजेंट बीटा के और एक टेंजेंट बीटा का न्यूमेरिकल कर दिया, दोनों न्यूमेरिकल कर लिए मैंने। ये v है मेरा बेटा, लैंग्वेज थोड़ी मेरी राइटिंग तो गंदी है, v बाई 1/1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा v बाई v। तो एक न्यूमेरिकल ये है, उसी का ही एक ये है, ये तो चेंज 180 का था, यहां चेंज 90 का है। और 180 का चेंज मेरा आराम से इसलिए हो गया क्योंकि 180 के चेंज में मेरे को ग्राफिकल मेथड के सारे पता हैं, जो सेम डायरेक्शन में थे दोनों ऐड हो गए थे, 180 पे दोनों माइनस हो गए थे, वो वाले रूल पता है मेरे को। तो यहां एंगल कितना था, ये वाला एंगल था, तो वो जब वो दोनों फिर अल्टीमेटली वो सेम लाइन में बन गए थे। जब मैंने माइनस किया होगा, पहले एंगल 180 है इसका, जब इसको चेंज किया तो कितना हो गया, 0 एंगल बन गया, तो ऐड करके काम कर दिया मैंने। यहां मेरा एंगल भी आ गया और मैंने उस एंगल की वैल्यू किसके साथ निकालनी है, फाइनल वाले के साथ। बीटा नीचे वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना, बीटा ऊपर वाला आएगा। यहां पर वो चांस की बात है कि सेम आ रहे हैं, बीटा यहां नीचे वाला भी 45 आएगा, इट इज ओनली ए चांस, लेकिन मुझे निकालना है फाइनल वाले के साथ हमेशा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? अब पहले एडिशन के एक दो सिंपल न्यूमेरिकल, ताकि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर थोड़ा उसके लेवल बढ़ा लेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, पहले सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास सिंपल, पहले वेरी सिंपल न्यूमेरिकल कर रहा हूं। दो फोर्सेस हैं, एक F1 फोर्स है, उसकी वैल्यू भी F है, F2 भी उसकी वैल्यू भी, और जो R है उसकी वैल्यू भी F है। फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो व्हाट इज रिजल्टेंट, मैंने पढ़ा हुआ है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, क्योंकि मेरे वेक्टर अकॉर्डिंग टू नेम, अगर वेलोसिटी होगी तो V हो जाएंगे, फोर्स होगी तो F हो जाएंगे, सारे ऐसे चलते रहेंगे। अब वो कह रहा है ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है, ये 2F स्क्वायर कॉस थीटा बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, और F स्क्वायर बराबर है 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा बन जाएगा। और ध्यान से देखो, F स्क्वायर सारा कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, राइट, ये 1 रह जाएगा। तो व्हाट इज 2 कॉस थीटा, -1, थीटा -1/2। अब कॉस 1/2 कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री, अगर प्लस का साइन होता। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर मैंने ये कहा हुआ है कि अब ये दो वेक्टर हैं, टेल टू टेल ज्वाइन किए हुए हैं, एंगल हमेशा क्या होगा, छोटे वाला, मींस ऊपर वाला काउंट करना है, नीचे वाला काउंट नहीं करना मैंने। इसका मतलब एंगल 180 से कम होगा हमेशा, या 180 होगा, 180 तो मींस -1 आ जाएगा, वो तो बात की बात है। मैं दोबारा रिपीट करूं, अपने शब्दों को ध्यान से सुनो, ये बहुत काम आएंगे जो शब्द द्वारा बना रहा हूं मैं यहां पे, ये बहुत काम आएंगे आपके। ये छोटी छोटी बातें जो कोई नहीं बताएगा आपको, ना ही किसी बुक में मेंशन नहीं है। ये दो वेक्टर है मेरे पास, राइट, दिस इज स्मॉलर एंगल, और नीचे वाला क्या है उसके, लार्जर एंगल, नीचे वाला लार्जर एंगल है। तो मुझे एंगल कौन सा काउंट करना है, ऊपर वाला काउंट करना है। इस मींस अगर दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल 180 से कम होगा, नेगेटिव है,
तो व्हाट इज, क्या है 60 आया है, प्लस होता तो 60 आया, तो व्हाट इज थीटा 180 माइनस थीटा 120 डिग्री, माइनस आ रहा है क्योंकि, तो 90 से बड़ा एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा वो, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो एंगल कितना बन जाएगा 120 डिग्री। थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, यहां पर कॉस थीटा आएगा। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल है आपके लिए कि जो मैंने वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है वो टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद निकलता है मेरा वेक्टर का एंगल, राइट। दो वेक्टर्स हैं, ये रब कर रहा हूं मैं, एक सिंपल न्यूमेरिकल था ये, तो रब कर रहा हूं मैं इसको। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर की वैल्यू p प्लस क्यू है और दूसरे की वैल्यू p माइनस क्यू है। दो वेक्टर हैं ये, मतलब ये दो फोर्सेज हैं, एक F1 है और एक F2 फोर्स है। दो फोर्सेज है मेरे पास, एक p प्लस क्यू, एक p माइनस क्यू, ठीक है। वो कह रहा है बताओ इनका रिजल्टेंट जो है, अगर इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर है इनका रिजल्टेंट। एंगल बताओ बीच में भाई, फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो सेम फॉर्मूला, r इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा अंडर द रूट इज इक्वल टू r। तो वैल्यू पुट कर दो, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा कितना बच्चों, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, राइट। आराम से ये 3p स्क्वायर 2, इधर p स्क्वायर बच गया बेटा जी, इधर आके ये माइनस का क्यू स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, कैंसिल हो गए, कॉस थीटा 1/2 आ गया। व्हाट इज थीटा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो कई दफा कंपटीशन में आया, हालांकि बड़ा लेंथी क्वेश्चन है वो, लेकिन फिर भी कंपटीशन में आ जाता है क्वेश्चन वो। ये पेन डाउन हो गया बेटा आपका क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था मेरा। एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज आर। दो वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है, इनका रिजल्टेंट कितना है, R है। रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R इफ Q इज डबल्ड, resultant is doubled. If Q is doubled, R doubles. Second time, if Q is reversed, again R 2R हो रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट कितना है बेटा जी, R है। अगर मैं Q को डबल कर दूं तब भी रिजल्टेंट डबल हो रहा है, अगर मैं Q को माइनस कर दूं तब भी रिजल्टेंट डबल हो रहा है। तो कहता है मेरे को जो है आप P Q R की रेशो बताओ, ये है क्या चीज बेसिकली। ये न्यूमेरिकल कई दफा आया हुआ है, मतलब मैंने जो है आपको बिट्स पिलाने के अंदर भी आया हुआ है न्यूमेरिकल ये, क्योंकि वो भी अगर आप बच्चे नॉन नेटिव वो भी एग्जाम दोगे उसका भी। ये आपका न्यूमेरिकल मुझे मेडिकल के AFMC में भी मिला हुआ है, तो दो तीन जगह न्यूमेरिकल मुझे मिला था, ये तो मैं इसको इसलिए कर रहा हूं आपके लिए। पहला फर्स्ट केस, R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा, R स्क्वायर, फैक्ट यही कह रहा है वो। नेक्स्ट 2R स्क्वायर सेकेंड केस के अंदर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2Q है ना, तो ये 4Q स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2P इंटू 2Q कॉस थीटा, सॉल्व करके आ जाएगा ये 4R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट हो बच्चा बता देना मुझे, कोई डाउट हो उसके अंदर। अगर थर्ड वर्ड इससे क्या क्या, अगर मैं माइनस कर देता हूं उसको, अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, सारी चीज यूज कर रहा है इसके अंदर वो।
तो अगेन डबल हो रहा है, तो इट मीन्स पहले मैं सिंपल स्टेप करता हूँ, 2r² इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस माइनस क्यू स्क्र देन अंडर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा बच्चों, क्योंकि जो एंगल पी और क्यू के बीच में माना है मैंने, पी और माइनस क्यू में एंगल कितना हो जाएगा, वो 180 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4r² इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस पी, तो माइनस 2pq कॉस ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट हो बच्चों उसके अंदर? पहली बात देख लो बच्चों इसके अंदर सारा, कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। कोई डाउट हो तो बता दो बच्चों मेरे को इसको। पहले वाली क्या करी है, वो पी और उसके लिए, पी और क्यू के लिए है। सेकंड वाली पी और 2q के लिए है। थर्ड वाली पी और माइनस क्यू के लिए है आपकी। अब इक्वेशन 1 को क्या करो आप, सेकंड में से माइनस कर दो इक्वेशन 1 को, तो क्या रह जाएगा, ये पी से खत्म हो जाएगा, 3q², ठीक है जी। और क्या रह जाएगा बच्चा आपके पास, 2pq cos थीटा। चेक कर लो, यही रह जाएगा, कुछ और आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी 3r² बराबर है 3q², ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 2pq cos थीटा। अब पहली और तीसरी को ऐड कर लो, वहां से 2pq खत्म हो जाएंगे। पहली और तीसरी को ऐड करते हैं, पहली और तीसरी ये रही, पहली और तीसरी ये रही, यहां से cos थीटा खत्म हो जाएगा ना बेटा, पहली और तीसरी में से। इनको ऐड कर लो, क्या बन जाएगा, 5r² पहली और तीसरी, 5r² इज इक्वल टू 2p² प्लस 2q²। ये बन गई बेटा जी। मैंने क्या किया, पहली और तीसरी को ऐड कर लिया, सॉरी पहली और तीसरी को ऐड कर लिया, ठीक हो गया। अब तीसरी और चौथी को ऐड करो, यहां से कुछ और नजर आएगा मेरे को। ऐड तीसरी चौथी को ऐड करते हैं, क्या बनेगा तीसरी चौथी ऐड करके, तीसरी चौथी 7r² ये रहा, इज इक्वल टू p² प्लस 4q²। यहां से पी खत्म हो गया। अब दो इक्वेशन बन गई आपके पास r और k के अंदर। अब क्या करना आपने, यहां से इनकी वैल्यू निकाल दो। तो अगर मैं चाहूंगा यहां से आप पहले इसको p को एलिमिनेट कर लो, वो q और r में रिजल्ट आ जाएगा, वो भी निकाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको अगर इंटू 2 कर दूं और फिर माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये बन गई, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, 5r² इज इक्वल टू 2p² प्लस 2q², और नीचे लिखा मैंने 7r² इज इक्वल टू p² प्लस 4q²। तो फाइनली मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, मैंने cos थीटा वगैरह सब एलिमिनेट कर ली है। एक तो बन गया मेरे पास 5r² बराबर है 2p² प्लस 2q², और एक मेरे पास बन गई है 7r² बराबर है p² प्लस 4q²। तो पहले मैं क्या करता हूं बेटा, p को खत्म कर देता हूं यहां से। तो मैं क्या करूंगा, इंटू 2 कर देता हूं इस इक्वेशन को, और दिस माइनस दिस कर देता हूं। तो 40 माइनस 5 9r², ये तो खत्म हो गया। 8 माइनस 2 6q²। तो 3r² इज इक्वल टू 2q²। तो यहां से व्हाट इज q, √3/2r आ गया। ऐसे ही आप q को खत्म कर लो यहां से, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। फिर माइनस कर दो, तो ये 10 माइनस 7 3r², 4 माइनस 1 3p², ये कट गए आपस में। तो यहां से आ गया आपके पास, ठीक है जी, और p इज इक्वल टू आपके पास r आ गया। अब इनकी रेशियो बना दो, क्या बन जाएगी, √2p इज इक्वल टू √3r √q बन जाएगी। तो व्हाट इज p इज टू q इज टू r, सबको r की फॉर्म में लिख लो। व्हाट इज p, r है। व्हाट इज q, √3/r। व्हाट इज r, वो तो r है ही ऑलरेडी, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, ये √2 रेज टू √3 रेज टू √2। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, आराम से इसको पेन डाउन कर लो क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन करूंगा, उसमें आपको सेंस समझाऊंगा मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और करूंगा अभी मैं।
और फिर आपका ये वेक्टर एडिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी पेन डाउन कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं। अब एक और लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, जिसमें डायरेक्शन वगैरह के बारे में बताऊंगा मैं आपको। मेरे पास एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। Velocity this towards east is to be added to a velocity of 40 meter per second towards north। अब जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए जिसमें ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ जो भी डायरेक्शन दी हुई है, तो सबसे पहला काम का ड्यूटी ये बनेगी बेटा, रफ में अपना ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लो अपनी। ठीक है, अब इधर चलते हैं। मेरे को क्या कहा, 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की टुवर्ड ईस्ट, एक लेंथ सपोज कर ली। अब टुवर्ड नॉर्थ कह रहा है, तो वो 40 है, नेचुरल से बड़ी बनानी पड़ेगी मुझे। ये नॉर्थ हो गया, और यहाँ बाकी डॉटेड बना दो, तो ये टुवर्ड ईस्ट है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये है 40 मीटर पर सेकेंड। राइट, दोनों को मुझे ऐड करना है बच्चों। अब ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कैसे ऐड करते हैं बेटा, अपनी पैरेललोग्राम को बना लेते हैं। सबसे पहला काम यही होता है हमारा। इस केस में मेरी रेक्टेंगल बनेगी, तो व्हाट इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। एंगल कितना, 90 डिग्री का, तो cos 90 जीरो होता है बच्चों। अब तो डायरेक्ट काम कर सकता हूँ, बहुत काम कर लिया पीछे हमने। दिस इज इक्वल टू v1 इज योर, v1 मैंने इसको माना है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। राइट, टेंजेंट बीटा निकालना है, तो ये इसका डायगोनल बनेगा बेटा जी। अब जो एंगल है, बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली, always with larger vector, this is beta, always with larger vector। तो what is the tangent beta, क्या आ जाएगा, 30/40 इज इक्वल टू 3/4। एक चीज़ और नोट करो आज, जो आपके बहुत काम आएगी, साइड में ट्रायंगल बना लो बेटा एक, ये बहुत काम आएगी आपके। अगर ये एंगल 37 डिग्री का हो, तो ये 3 होता है बच्चों, सॉरी हाँ, यह 3 होता है, ये 5 और ये 4। व्हाट इज द साइन ऑफ 37 डिग्री, 3/5। व्हाट इज कॉस ऑफ 37 डिग्री, 4/5। व्हाट इज टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री, दैट इज 3/4। ये बहुत काम आएगा आपके, नोट कर लो बेटा जी, कोई नहीं बताएगा आपको, ये बहुत काम आएगा। और मतलब ऑलमोस्ट जितने भी आपके कंपटीशन के न्यूमेरिकल हैं, सब इस वैल्यू से सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो कितना आ गया ये, 37 डिग्री। तो बीटा कितना आ गया, 37 डिग्री। आज मैं इसकी लिखना सिखाऊंगा, मैंने लिखना कैसे है इसको। उससे पहले यहां पर एक काम करो छोटा सा, ये लो जी, एक एंगल ये बनाओ अल्फा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। चलो यही बना देता हूं मैं, एक नीचे बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। एक एंगल और बनाओ बेटा, ये इधर बनाओ बीटा। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब एंगल कहाँ बन रहा है, अल्फा ईस्ट के साथ तो बन रहा है, मुझे पता है ईस्ट के साथ बन रहा है। और ये एंगल कहाँ बन रहा है, नॉर्थ के साथ बन रहा है। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, अल्फा ईस्ट के साथ तो बन रहा है, लेकिन टुवर्ड नॉर्थ बन रहा है, तो क्या आएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दोबारा लिख रहा हूं मैं, या इसको यही लिखते हैं, अल्फा कहाँ बन रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये एक एंगल और बनाता हूँ मैं, चलो एक और बनाता हूँ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। राइट, ये एंगल नीचे बना रहा हूँ जान के मैं, ये एंगल बीटा बनाया पहले मैंने। ये क्या है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ। ये एंगल भी ईस्ट के साथ ही बन रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है, ये साउथ की तरफ बन रहा है। तो ये जो बीटा है क्या बनेगा, ये साउथ ऑफ ईस्ट। मतलब ये ईस्ट के साउथ की तरफ बन रहा है और ये ईस्ट के नॉर्थ की तरफ बन रहा है। दो हो गए, सारे केसेस कर देता हूं मैं। थर्ड केस ये ले लो, एंगल ऊपर आना था, अब एंगल को ऊपर बना देता हूं मैं। ये डेल्टा लिख दिया मैंने,
अगेन ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है बच्चों, अब ये कहाँ बन रहा है? नॉर्थ के साथ बन रहा है, तो क्या आएगा ये? डेल्टा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ बन रहा है, राइट जी। अब एंगल नीचे वाला रह गया एक, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैंने ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये अब इसके नीचे वाला, इसको नाम दे देता हूं मैं गामा नाम दे देते हैं। चलो अगेन ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो गामा कहां बन रहा है? ये आपका साउथ ऑफ ईस्ट। अब ध्यान से एक चीज और सुनो, एंगल कहां बन रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो दोनों लिखने हैं मुझे। नॉर्थ जहां एंगल बन रहा है, कहां बन रहा है? ईस्ट और साउथ के बीच में, दोनों लिखने हैं मुझे। कहां बन रहा है? ईस्ट और नॉर्थ में, दोनों लिखने हैं मुझे। कहां बन रहा है? ईस्ट और साउथ में, दोनों लिखने हैं। लेकिन जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको बाद में लिखना है। ये बात आज मोटी, ये रफ लैंग्वेज की बात है मेरी, क्योंकि कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, दिस इज रफ लैंग्वेज। जहां एंगल बन रहा है वो मुझे बाद में लिखना है। ठीक हो गया बच्चों? जहां एंगल बन रहा है मुझे वो बाद में लिखना है। ये देखो ये बाद में लिखना है, एंगल ईस्ट के साथ है, यहां एंगल नॉर्थ के साथ है, बाद में लिखा मैंने। एंगल किसके साथ है? साउथ के साथ है, उल्टा लिखा गया मेरे सभी, साथ साथ चेक भी हो जाएगा ये, ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक हो गया बच्चों? जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको बाद में लिख रहा है, और जिन दोनों के बीच में बन रहा है उन दोनों की जिक्र करना है मुझे, पहली बात। अब ये 37 कहां बन रहा है? ईस्ट और नॉर्थ के बीच में बन रहा है, और नॉर्थ के साथ बन रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक तो ये चीज बेटा आपको ना किसी बुक में लिखी हुई है, ये आपको अपना एक्सपीरियंस से समझ आएगी, ये आपको टीचर बताएगा जो सामने वाला है। कंपटीशन में ये डायरेक्शंस की वजह से ही मेरा न्यूमेरिकल गलत होता है हमेशा। ये एक और चीज सुनो, ध्यान से सुनना उस चीज को भी। इधर देखो, मैंने कहा ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, दोनों तरफ 45-45 का एंगल है। मींस लाइन बिल्कुल बीच में से है। जब लाइन बीच में से होती है तो ऑफ खत्म हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ, ये दो बातें हैं, कब लिखनी है मैंने। अब जो बाद में एंगल उसके साथ है, तो अगर तो दिया हुआ है एंगल अल्फा, तो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, कितना है ये? 45 डिग्री। तो मुझे ये 45 दिखाना है न्यूमेरिकल के अंदर अपना। या अगर किसी सिचुएशन में मेरे पास एंगल 45 डिग्री इसके साथ आया है, ईस्ट के साथ, तो मुझे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अगर ये एंगल ऊपर वाला दिखाना है मुझे, बीटा बराबर है 45 डिग्री, तो मैं लिखूंगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मींस ईस्ट हाइफन नॉर्थ। ये बेटा जी इस चीज को नोट कर लो, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैंने 4 डायरेक्शन, ये तो रफ खत्म हो गया काम। एक ये बताइए डायरेक्शन, एक ये बताइए 2, एक ये बताइए 3, एक ये बताइए 4, और ये 5वीं मैंने कहा अगर बिल्कुल दोनों तरफ 45 हो तो उसका भी तरीका है, मुझे 45 एंगल कौन सा दिखाना है, ऊपर वाला या नीचे वाला। अगर नीचे वाला दिखाना है तो एंगल ईस्ट के साथ है, नॉर्थ ईस्ट। अगर ऊपर वाला दिखाना है तो ईस्ट नॉर्थ, ऊपर बना दिया मैंने, ईस्ट नॉर्थ ऊपर बना दिया। ठीक है बेटा, सो दिस वाइंड्स अप माय वेक्टर एडिशन। अब मैं नेक्स्ट, अभी मैंने बीच में कहा था कि मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे तो जब उस समय देखेंगे कैसे काम करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक लेबिस थ्योरम है मेरे पास, वो अगर मोर देन 2 वेक्टर्स है मेरे पास तो उनको कैसे ऐड कर रहा है उसकी बात करेंगे, और आगे फिर टॉपिक की बात करें। तो यहाँ आज बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।